So we'll start introduction of embryology and the ovarian and the menstrual cycle. Okay. So before starting, there are some terms related to the embryo. There are some periods related to the embryology. Okay. We will study then. Then we'll go to the ovarian and the menstrual cycle. So this is embryology is the branch which deals the study of formation and development of organism. Study of formation and development of organism. Correct? Come. Clear? So it's a branch of science that deals with the study of formation and development of organism. Then reproduction. Come. Reproduction is sexual reproduction involves fusion of male and female gametes. You know that male and female gametes इतना तो हो गया होगा अभी. Sperms and ovum. Okay. So fusion of male and female gametes to produce offspring. So it requires for the formation of new species. Okay. Now what is the ontogeny? So this is the branch which deal with the complete life. Complete life means prenatal time and postnatal time. Prenatal means in the womb, okay, in the uterus, and postnatal after birth. Okay, growth and development of that organism. Prenatal as well as postnatal. Okay, ontogeny. Actually, these are the some words. Okay, you have to learn these definitions. The ontogeny branch with complete, it deals with the complete life cycle like prenatal and postnatal growth and development. Then phylogeny. What is phylogeny? Yes, it deals with the evolutionary history and relationship among organisms. Means starting with the organism जब डेवलप हुआ तो क्या हुआ? फिशेज, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन मैमल्स. ये आपके बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा था ना? ठीक है. एंड देन दिस ontogeny इट रिकैपिचुलेट द फाइलोजेनी. इट मींस जैसे अपन किडनी का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, व्हेन वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ किडनी, उसमें देखेंगे इनिशियली द किडनी बनेगी प्रोनेफ्रोस, then it will become mesonephros, then it will become metanephros जो अपनी है. तो the pronephros they are related to fishes and amphibians, then mesonephros reptiles, and then mammals में कौन सी होगी? metanephros. So this ontogeny it recapitulate the phylogeny. Okay. Now there are some periods of human embryology. They are, first is germinal period. It is first 3 weeks of the first week after the fertilization, when the male and female gametes they fuse. This process it is known as fertilization. So 0 to first 3 weeks, this period it is germinal period. तो आपको कभी ये क्वेश्चन हो कि कब हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है, कब हम इसको फीटस बोलेंगे. जनरली क्या करते हैं हम लोग? आफ्टर प्रेगनेंसी रैंडमली अपन क्या कहते हैं? फीटस बोलते हैं ना. तो उसकी भी टाइमिंग्स है एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग. एम्ब्रियो कब तक है? एम्ब्रियोनिक पीरियड कब है? 4th to 8th वीक. 4th to 8th वीक मींस सेकंड मंथ से, ठीक है, 4th वीक to 8th वीक. देन फीटल पीरियड आफ्टर 3rd month ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ टिल द बर्थ, ठीक है, दिस इज द फीटस. तो उससे पहले आप जर्मिनल पीरियड में वो क्या होता है? उसमें जायगोट,
ठीक है, देन वो इम्प्लांट होता है। उसके बाद में सेकंड 4th वीक टू 8th वीक में क्या होगा, वो आपका एम्ब्रियो। देन फीटस कब होगा, 3rd मंथ टू टिल बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद में क्या होगा, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। व्हेन इट इज इन्फेंट कब बोलोगे आप, ये सारी टर्मिनोलॉजी है, ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोल दिया। इन्फेंट कब तक बोलोगे आप, आफ्टर बर्थ टू दी 1 ईयर ऑफ एज, आफ्टर बर्थ टू दी 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, देन चाइल्डहुड फ्रॉम 1 टू 12 ईयर ऑफ एज, प्यूबर्टी फ्रॉम 12 ईयर टू 16 ईयर ऑफ एज। बट आजकल कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इट इज 11 टू 14 ईयर, धीरे धीरे वेरिएबल प्यूबर्टी भी चेंजेस आ रहे हैं। तो सम बुक सेज 11 टू 14 ईयर, बट अकॉर्डिंग टू दी सम एम्ब्रियो बुक्स इट इज 12 टू 16 ईयर। ठीक है, देन व्हाट इज एडोलेसेंस, आफ्टर प्यूबर्टी टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, एडल्टहुड जो मैक्सिमम तुम लोग हो 18 टू 25 ईयर हो, नहीं है आगे। ओके, सो दीज आर दी सम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल पीरियड्स। ठीक है, इन्फेंट कब बोलेंगे आप, बर्थ टू 1 ईयर। चाइल्ड कब बोलेंगे, 1 टू 12 ईयर। एडोलेसेंस कब बोलेंगे, 16 ईयर ऑफ एज। देन मतलब 12 टू 16 आफ्टर चाइल्डहुड, 12 to 16 years, adolescence after puberty till 18 years, then adulthood 18 to 25 years. So these are the some periods of development, postnatal development and prenatal. Prenatal में क्या क्या थे, germinal period 0 to 3 weeks, okay, उसके बाद में embryonic period 2 to 4 to 8, yes, good. Then next क्या है, फीटल पीरियड 3rd मंथ टू बर्थ टिल बर्थ, दैट इज द फीटस। तो अभी आपको क्लियर होना चाहिए कब हम बोलेंगे कि दिस इज फीटस, दिस इज एम्ब्रियो। ठीक है, ओके, एंड देर आर सम टर्म्स ऑल्सो, द क्रेनियल, द कोडल, द रोस्ट्रल। द क्रेनियल एंड रोस्ट्रल दे आर टुवर्ड्स द हेड। जब भी हम एम्ब्रियो को कभी भी डिस्क्राइब करेंगे तो ये वर्ड हम यूज करते हैं क्रेनियल एंड और दी रोस्ट्रल एंड, इट मींस टुवर्ड्स द हेड। ठीक है, यदि कोडल बोल रहे हैं टुवर्ड्स द टेल। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड है कुछ। नाउ कमिंग टू दी ओवेरियन साइकिल। सो दिस इज द साइकिल विच consists of, there are 4 stages. The maturation of follicles, there are multiple follicles, 15 to 30 follicles, they are in the race of to reach the mature follicle. Mature follicle means Graafian follicle. ठीक है, mature follicle means Graafian follicle. Then उनमें से एक जो भी follicle है वो mature हुआ है, जो Graafian follicle है वो ovulate हो जाएगा। So that is the ovulation, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। Then formation of corpus luteum, जैसे ही ओवम ग्राफियन फॉलिकल से एग्जिट करता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, उसके बाद में जितना भी मटेरियल बचा है दैट विल फॉर्म द कार्पस ल्यूटियम। वो कैसे बनता है वो आगे देखें। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस विद द कार्पस ल्यूटियम, इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन इट विल बी फर्टिलाइजेशन। 4th मंथ तक ये कार्पस ल्यूटियम रहेगा, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये 28 और 29 डे को डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इट गिव्स सम हॉर्मोन्स, मेनली प्रोजेस्टेरोन एंड स्लाइटली एस्ट्रोजन आल्सो। सी दी, दिस इज द स्लाइड ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी, इसमें देख रहे हो आप दीज फॉलिकल्स, इसके अंदर अगर आप देखेंगे प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte आया कहां से, पीजीसी से। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ठीक है, ये डेवलप हो रहे हैं जेनाइटल रिज में, जो आपको
डिटेल में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, जब आपको बताएंगे कि कहाँ पे जेनाइटल रिज बनती है, मीडियल टू मीजोनेफ्रोज, देन क्या क्या होता है वहां पे, ठीक है। तो पीजीसी से डेवलप होते हैं ये दीज फॉलिकल्स, जिसमें प्राइमरी oocyte एंड सराउंडिंग द सेल्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे दीज आर दी प्राइमोडियल फॉलिकल. When you will say the primordial follicle, when you will say the primary follicle, when you will say the secondary follicle, then tertiary, then Graafian, इसकी भी वो है. When this oocyte, primary oocyte, it is covered by the flat cells, single layer of flat cells, ठीक है, then it is known as primordial follicle. क्या बोलते हैं इसको? Primordial follicle, ठीक है. Oocyte, primary oocyte, it is surrounded or covered by single layer of flat cells, then it is known as primordial follicle. Clear? So these are the primordial follicle, ठीक है. When it becomes the primary follicle, then these the cells surrounding the primordial follicle, they become cuboidal in shape. Histology में आप पढ़ेंगे कि initially they flatten cells, squamous cells, then cuboidal cell, ठीक है. When it becomes the cuboidal, then it is known as primary follicle. फिर क्या होगा? These cells surrounding the oocyte, they again increase in numbers, ठीक है. तो then these cells known as granulosa cells. यहां पे आके ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा. एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जाने के बाद में इसमें थोड़े थोड़े कुछ स्पेसेस बनने लग जाएंगे, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्पेसेस, ठीक है. देन दीज स्पेसेस दे विल फॉर्म, दे जॉइन एंड फॉर्म द कैविटी लाइक थिंग दैट इज नोन एज एंट्रम, ठीक है. ये यहां पे बन गई एंट्रम, ठीक है. एंट्रम किसमें होगा? कंप्लीट टर्सरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है. अब कब इसको आप ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे? यहां पे ये क्या है? दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी. यहां पे मेडुला है, ये वाला एरिया मेडुला, एंड ऑल अराउंड दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है. दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस सेंट्रल पार्ट इट इज मेडुला ऑफ ओवरी. अब इसमें क्या हो रहा है? यहां पे दिस पार्ट इट इज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर देर आर सम कनेक्टिव टिश्यू और दी सेल्स, ठीक है. व्हेन दिस टर्सरी फॉलिकल इट इज सराउंडेड बाय स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है. स्ट्रोमल सेल इसको कवर करेंगी टर्सरी फॉलिकल को, एंड दीज सेल्स नोन एज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, देन इट इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल. समझ गए डिफरेंस क्या आ रहा है? टर्सरी में आपका एंट्रम भी है, सब कुछ है, ठीक है, बट थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना किसको कवर कर रही है? ग्राफियन फॉलिकल को कर रही है, ठीक है. ग्राफियन फॉलिकल ऑल्सो नोन एज मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, जो ओवुलेट होना है, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल. यहां पे देख रहे हो, ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल, एंड यहां पे यह क्या हो गया? ये रप्चर हो गया है, ठीक है, रप्चर हो गया. तो एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, एवरी मंथ 15 to 30 these follicles, they even they want to reach to the stage of Graafian follicle, लेकिन उनमें से एक ही लकीएस्ट होता है जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है, जो मेच्योर, कंप्लीटली मेच्योर होता है, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल. क्लियर? अदर्स का क्या होगा? वो क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, एंड दे विल बिकम एट्रैक्टिक फॉलिकल्स. इसकी थ्योरी अपन देखेंगे बाद में, समझ आ गया? 15 to 30. तो इनिशियली यदि देखो तो एट द बर्थ फीमेल के अंदर 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है. एट प्यूबर्टी इट विल बिकम 40,000, किसी बुक्स में 40 to 40,000 है, 40,000, ठीक है. देन प्यूबर्टी टू 45 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज देयर विल बी मेनोपॉजल स्टेज. उसके बाद में आप ये दिस ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है. तो प्यूबर्टी टू दी 45 ईयर और द मेनोपॉजल स्टेज, एवरी मंथ साइक्लिक 15 to 30 फॉलिकल्स क्या करते हैं? अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होते रहते हैं. उनमें से एक बन जाता है मैच्योर एंड अदर डीजनरेट हो जाते हैं,
क्लियर? तो स्टेज ऑफ मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल क्या है? आफ्टर द प्यूबर्टी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स. विच हॉर्मोन? हाइपोथैलेमस से देयर आर सम हॉर्मोन्स, उनको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH. ठीक है? उसके बाद में इट विल इफेक्ट योर एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से आपको क्या रिलीज होगा? FSH एंड LH. FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स क्या हो रहा है? एवरी मंथ एंड नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल एंटर द रेस ऑफ मेच्योरिटी. ओके, दे वांट टू बिकम ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है? ओनली वन फॉलिकल रीचेज मेच्योरिटी, दिस फॉलिकल नोन एज ग्राफियन फॉलिकल. यहां तक समझ में आ रहा है? ये एम्ब्रियो को बेटा हमेशा कहानी के जैसे स्टोरी होती है ना, वैसे चलेगा ये. ठीक है? शुरू में यदि तुमने सुना है फर्स्ट वर्ड से कंटिन्यूअसली इसको, यू हैव टू फोकस. यदि तुमने बीच में झपकी ले ली, जैसे पीछे वाले ले लेते हैं, और फिर सीधा ही तुम बोलोगे कि स्पाइरल आर्टरीज, स्पाइरल आर्टरीज, तो यार क्या बोल रहे हैं, कल ही देखेंगे अब तो, है ना? तो फर्स्ट वर्ड से पकड़ना, एम्ब्रियो को हमेशा स्टोरी की तरह सुनना है. इनिशियली हुआ क्या? गैमिट से स्पर्म, ओवम, स्पर्म डेवलप इन मेल. ठीक है? टेस्टिस के अंदर. ओवम डेवलप इन ओवरी. ठीक है? फीमेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, देन दे फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है? जाइगोट फॉर्मेशन, देन इम्प्लांट. इसी तरह से फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट एंड थर्ड वीक, इस तरह से आगे आएंगे. ये तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो आपको इसको पकड़ के रखना है. जब समझ में आएगा तुम्हें, तो आपको टिल ये स्टोरी कहां तक सुननी है? 9 मंथ, 39 वीक्स तक. ओके? बीच में छोड़ना नहीं है. चलो, गुड. देन rest of follicle regress and are replaced by fibrous tissue. These are termed as atretic follicle, जो मैंने बता दिया degenerate हो जाते हैं. And these appear as white spot or streak under the surface of ovary. Maturation of follicle समझ में आ गया? First stage ovulation. अब देखो, this is the primary oocyte. ठीक है? This is nucleus and this is surrounded by flat cells, squamous cells. तो ये कौन सी स्टेज है? प्राइमोडियल, प्राइमोडियल फॉलिकल. ठीक है? व्हेन इट बिकम्स द क्यूबोइडल सेल, देन इट इज प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है? अब इनमें से देखो, ये प्राइमोडियल है, दीज आर द प्राइमोडियल. यहां पे हो गया, या क्या बन गई? प्राइमरी फॉलिकल. फिर ये इन्होंने बहुत सारी लेयर बनाई, ग्रेन्युलोजा सेकेंडरी में बन गई, ये भी सेकेंडरी. देन क्या होगा आगे जाके? इनके बीच में कुछ स्पेसेस बनेंगे, then these space join and they form antrum cavity. ठीक है? तो tertiary. Then this stroma, it will cover this tertiary follicle. Tertiary follicle को cover करेगा, then it will known as Graafian follicle, mature follicle. ठीक है? Stromal cells, they will become theca externa and theca interna. So this is the antrum. ठीक है? यदि यहां तक बात करें तो दिस इज ओनली टर्सरी फॉलिकल. टर्सरी फॉलिकल हो गया. दिस इज प्राइमरी oocyte. ठीक है? एंड इट इज कवर्ड बाय वन लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा. ठीक है? फिर ये ग्राफियन जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनमें क्या बन गई? एंट्रम. अब ये वाला जो एरिया एंड ये वाला एरिया है तो ग्रेनुलोसा सेल्स ही, इसको बोलेंगे क्यूमुलस ऊफोरस, जो इसको सराउंड कर रहा है. इसको क्या बोलेंगे? क्यूमुलस ऊफोरस. एंड ये बोल जाएगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. है तो ग्रेनुलोसा सेल थी. कौन सी सेल है? जो इनिशियली फ्लैटन थी, देन क्यूबोइडल बनी, देन ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ. ओके? देन ओवुलेशन होगा. ठीक है? अब ओवुलेशन में क्या होगा? एज द ग्राफियन फॉलिकल रीचेज द सरफेस ऑफ द ओवरी, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, वन ग्राफियल फॉलिकल इट विल रीच द सरफेस टू द ओवरी. ठीक है? तो वहां से क्या हुआ? लाइनिंग ऑफ कॉर्टेक्स इट विल स्ट्रेच. इट विल स्ट्रेच. दिस रिजल्ट इन इस्चीमिया ऑफ दिस एरिया. आफ्टर दैट देयर विल बी रप्चर ऑफ फॉलिकल एंड ओवरलाइंग एपिथेलियम ऑफ कॉर्टेक्स. जो
ओवरी की जो लाइनिंग है इट विल ऑल्सो रप्चर एंड दिस ग्राफियन फॉलिकल विल ऑल्सो रप्चर। ये क्यों हो रहा है बाद में? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट होता जाता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, एंड दैट विल कॉज द प्रेशर, तो इट विल कॉज द रप्चर। ठीक है, एंड या ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? LH। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो क्या होता है इसका, जैसे सर्ज होता है जस्ट बिफोर 30 अराउंड 34 आवर्स बिफोर दी ओवुलेशन, इट विल बी LH सर्ज। अपन एक डायग्राम है वो, ये सारी तुम्हें फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे तुम्हारे हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, फिर भी वी आर टचिंग दीज थिंग्स। ओके, the oocyte release into abdominal cavity and this process it is known as ovulation। ovulation समझ में आ गया क्या हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा क्योंकि फ्लूइड बढ़ रहा है, प्रेशर होगा तो वो रप्चर हो जाएगा, देन कॉर्टेक्स की, ओवरी की कॉर्टेक्स भी रप्चर हो जाएगी, देन इट विल कम इन दी, कहां? ओवरी कहां पे है? ओवरी कहां पे है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है। तो जैसे ही वो ओवम बाहर आएगा एंड दैट विल, ये ओवम जो है आपका ये नेकेड नहीं है, इट विल कम विद द क्यूमुलस ऊफोरस, जो सेल थी क्यूमुलस ऊफोरस उसके साथ बाहर आएगा, एंड दीज सेल्स आल्सो नोन एज कोरोना रेडिएटा। तुम्हें पता है ऑलरेडी, ऐसा लग रहा है मुझे। वेरी गुड, पढ़ा है ये तो समझ में आ रहा है मतलब। चलो गुड गुड। नहीं मैं तो सोच रहा था कि कैसे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, इनिशियली होता है बाद में पकड़ लोगे। ठीक है, so with the rupture of Graafian follicle, oocyte liberated in the peritoneal cavity with the corona radiata cells। ठीक है, अभी oocyte को क्या होगा? See, this is uterus, okay, and these are the two fallopian tubes, okay। ऐसे यहां पे होती है ओवरीज, ओवरी रप्चर हुई, ठीक है, ओवुलेशन के दौरान। तो ये जो फिम्ब्रियाज है, फिम्ब्रियाज दे विल कैच दिस ओवम, कम हियर, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, इस तरह से वो क्या होगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही एंटर किया, देखो कहानी है ये, सब कुछ स्टोरी है। जैसे ये एंटर किया, वहां पे आपकी फैलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियम है, इट इज कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सीलिएटेड, उसके भी सीलिया है, ठीक है, एंड उनकी जो डायरेक्शन है सीलिया की, वो ऐसे ऐसे नहीं है, वो है आओ, ऐसे है इस साइड। ठीक है, ओके। तो जैसे ओवम आया, when ovum enter in the this fallopian tube, तो क्या होगा, सीलेटेड कॉलमनर सेल्स की सीलिया क्या करेंगे, उसको टुवर्ड्स दी यूट्राइन कैविटी की तरफ उसको धकेलेंगे, दे विल पुश लाइक दिस। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? सीलिया। सीलिया किसका? जो फैलोपियन ट्यूब की एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यहां तक समझ में आ गया? चलो, अच्छा लिखा भी रहता है, ओके, मैं तो एनेक्ट करता हूं उसको। फिर क्या है, यूट्राइन कैविटी में आ गया। अब इसको क्या क्या फैसिलिटेट कर रहा था, जिसमें एक तो सीलिया हो गए, फिम्ब्रिया भी हो गया, ओके। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सोचो फर्टिलाइजेशन कौन सी साइड पे होता है, ये भी तुम्हें पता, आई नो, एम्पुला, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो यूट्राइन कैविटी through the vagina, then cervix, then the sperm enter in the your fallopian tube at the site of ampulla। वहां पे जाके क्या, ओवम आया and sperm they will fuse। this process it is known as fertilization। यदि fertilization नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ओवम क्या होगा बाद में, in the menstrual cycle it will degenerate and it will come out with the endometrium। ठीक है, दैट इज द इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जो अभी देखेंगे। एंड सो सी दीज आर दी सेल्स, कोरोना रेडिएटा सेल्स।
ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ तो क्या था, साथ में क्या लेके आए, कोरोना रेडिएटा, एंड दीज आर दी स्पर्म्स, ये क्या कर रहे हैं इसमें, दिस स्पर्म इट इज एंटरिंग, दिस इज मीन्स फर्टिलाइजेशन इट इज गोइंग ऑन। अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही ये एक एंटर कर लेगा स्पर्म्स, बाकी स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे, जिसको पॉलीस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है आपका, आगे आएगा सभी फर्टिलाइजेशन वगैरह, उसमें जोना रिएक्शन वो है वगैरह, जो तुम पढ़ोगे आगे। सी दिस इज द ओवरी, दीज आर दी follicles, Graafian follicles, it is rupturing, then it will come out, ठीक है, प्राइमरी oocyte। यहां पे जो oocyte रिलीज हो रही है दैट इज इन द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ओके। देन फिम्ब्रियाज क्या करेंगे, इसको यहां तक, यहां पे ले आएंगे। देन आप बाद में क्या होगा, जैसे ही वो ओवम रिलीज हो गया तो बचा हुआ जो पार्ट है, फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, उसमें क्या होगा, इसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉर्पस हेमेरेजिकस, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या होगा, देयर आर सम पिगमेंट, येलो पिगमेंट ल्यूटीन, वो क्या होगा इसके अंदर जमा होने लग जाएगा ग्रेनुलर सेल्स के अंदर, ठीक है। देन दीज बिकम ल्यूटीन सेल्स, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम, येलो पिगमेंट के कारण। आफ्टर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कंपोनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल विद इन द कॉर्टेक्स ओवरी अंडरगो फॉलोइंग चेंजेस, द ल्यूमन ऑफ रप्चर फॉलिकल गेट क्रम्पल्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड, ब्लड रिप्लेस दिस फ्लूइड, ओके। देन दिस डिराइव्ड फ्रॉम रप्चर्ड वेसल ओवर द सरफेस ऑफ द ओवरी, कहां से आया ये ब्लड, जो उसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स हैं। फिर क्या हो रहा है, द सेल फॉर्मिंग थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, हाइपरट्रॉफी, दे सीक्रेट रिलीज। जो थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना थी वो क्या है, वो स्ट्रोमल सेल्स थी, मैंने बताया ना, स्ट्रोमा की सेल्स, जब भी ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। देन फॉलिकुलर सेल्स also hypertrophy, these cells imbibe yellow pigment whereby they are termed luteal cells। ग्रेनुलर सेल में क्या होगा, एक पिगमेंट इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज द येलो पिगमेंट ल्यूटीन। उसके बाद में these cells term as luteal cells, and these cells they secrete progesterone, and this progesterone it is important for the maintenance of the pregnancy। कब तक, जब तक कि आपका प्लेसेंटा वर्क नहीं करने लग जाए, ठीक है। कब तक करेगा, जब तक कि प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा फंक्शनल कब होता है, 4th मंथ। देखो एक चीज बता रहा हूं, मेरी क्लास में समझ में नहीं आया ना किसी को, बस आंख खोल के ऐसे ऐसे रहना कि समझ में आ रहा है, बातें नहीं करना है, वो मेरे को क्या कि डिस्ट्रैक्ट करता है, वो फिर उस पर अटैक होता है, ठीक है। तो डोंट डू दिस, समझ में आया। फौजी लैंग्वेज में अटैक मीन्स उसको बोल देंगे स्टैंड अप, अटैक मीन्स वो नहीं है, कुछ अटैक ही कर देंगे, ओके। तो ये क्या बन गया, दीज सेल्स सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटियल सेल्स एंड दी थीका सेल फॉर्म मास ऑफ टर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। कंप्लीट फुली फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम बनने कब तक बनेगा, आफ्टर द 9 days ऑफ ओवुलेशन, मींस अराउंड 23rd डे और 25th डे, जहां तक ये कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीट फंक्शनल हो जाएगा। अभी क्या हुआ, यदि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या होगा, दीज हॉर्मोन्स विल कम डाउन, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है इट विल डीजनरेट एंड इट विल बिकम द स्कार टिश्यू दैट इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस। ये यहां पे बन गया एल्बिकेंस। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट कार्पस ल्यूटियम अंडरगो रिग्रेसिव चेंजेस, these causes fall in hormone level due to dividing of hormone level cytoplasmic nucleus, this is the regression of replaced by fibrous tissue, okay, and thus regressed carpus luteum it is termed as carpus albicans। समझ में आया, कार्पस ल्यूटियम कैसे बना ये समझ में आ गया। ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte निकली विद द कोरोना रेडिएटा, बचा हुआ पार्ट ने क्या बना लिया, कार्पस ल्यूटियम बना लिया, ठीक है। उसके अंदर कुछ सेल्स ने क्या किया, एक ल्यूटीन नाम का एक पिगमेंट इम्बाइब कर लिया,
बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है? इट रिलीजेस सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन दैट रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम इट विल गो टिल दी 3rd मंथ, क्योंकि 4th मंथ से कौन सा स्टार्ट हो जाता है? प्लेसेंटा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा? यस, आफ्टर द 23rd डे धीरे धीरे 28 एंड 29 डे के आसपास ये डिजनरेट हो जाएगा एंड द प्रोजेस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन दैट विल बी फॉल डाउन। ओके, नाउ कमिंग टू यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल, अरे यार एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही बनाया था ना। ओके, so see, this is the reproductive female reproductive organ। यहां से this is the vagina, this is the cervix, this is uterus, this is ovary, okay, this is fallopian tube, the fimbria, ostium, isthmus, ampulla, isthmus, and यहां पे क्या होगा? intramural part, and this is your fundus of uterus। ठीक है, यहां पे ओवम आया, इसने इसको कैच किया। अभी यूट्राइन साइकिल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? यूट्रस की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसकी लाइनिंग। इफ यू गो फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, फर्स्ट इट इज कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड द पेरिटोनियल लेयर, विसरल पेरिटोनियल लेयर। ठीक है, दैट इज नोन एज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। देन दिस पार्ट, मिडिल पार्ट, इट इज द स्मूथ मसल्स। ठीक है, एंड इट इज नोन एज myometrium। the inner lining, this inner lining, it is known as endometrium। so endometrium में क्या है? endometrium में क्या है? म्यूकोजा है। म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम, यूट्रस की एपिथेलियम है, जो भी आप वापस हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एपिथेलियम कौन सी है? कॉलमनर सीलिएटेड। ठीक है, हाँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ, इसके अंदर ना सीलेटेड भी होती है एंड कॉलमनर। बिफोर प्यूबर्टी इट इज सीलेटेड। जैसे ही एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ होने लगती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बन जाती है ओनली कॉलमनर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए लॉजिक। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में तो ऑलरेडी है कॉलमनर सीलेटेड, बट बिफोर प्यूबर्टी कॉलमनर सीलेटेड ही होती है। इसलिए जनरली क्या लिख देते हैं? कॉलमनर। वो कब है? आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि बार बार स्लफ हो रही है एंडोमेट्रियम। सो दिस एंडोमेट्रियम इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम दैट इज नोन एज कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये स्लफ होना है तो क्या बोलेंगे इसको? कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, एंड कॉलमनर एपिथेलियम, उसके नीचे और क्या होगा आपका? स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा के अंदर क्या मिलेंगी? ग्लैंड्स मिलेंगी एंड आर्टरीज मिलेंगी, वेसल्स मिलेंगी। एंड आर्टरीज भी कौन कौन सी मिलेंगी? स्पाइरल आर्टरीज एंड स्ट्रेट आर्टरीज। ठीक है, अब दिस एंडोमेट्रियम ऑल्सो हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम बेस लेयर में आएगी तो कौन सी आ गई? बेसेल, स्ट्रेटम बेसेल। अब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान जैसे ये एंडोमेट्रियम स्लफ होता है तो उसके अंदर कौन सी लेयर स्लफ होती है एंडोमेट्रियम की? स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। दीज 2 layers they are supplied by spiral arteries only। the stratum basal it is supplied by straight arteries। ठीक है, so during menstrual cycle कौन कौन सी 2 लेयर स्लफ होती है? stratum compactum and stratum spongiosum। so we have discussed this thing, outermost serous layer, middle layer smooth muscles layer, endometrium, mucosa and म्यूकोजा में क्या क्या बताया मैंने? सरफेस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, देन ग्लैंड्स, देयर आर सम ग्लैंड्स आल्सो। ठीक है, देन स्ट्रोमा में क्या आपका? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी? स्पाइरल एंड स्ट्रेट आर्टरीज। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। द डीपेस्ट लेयर दैट इज द स्ट्रेटम बेसेल, इंटरमीडिएट लेयर स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। Now coming to the cycle. During the reproductive age of woman, cyclic changes occur. The cycle it is
around normally it is 28 to 30 days, 28 to 30 days. Okay, then sequential changes क्या होंगे इसके अंदर? the menstrual stage, proliferative stage and secretory stage and ischemic stage. These are the 4 stages. अब इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, the pre-ovulatory phase, ठीक है, and post-ovulatory phases. Pre-ovulatory phases consist of the menstrual stage and proliferative stage. Then क्या होगा? Ovulation होगा. Then after the ovulation, post-ovulatory stages कौन सी है? Secretory and ischemic stage. So uterine cycle, it consists of 4 stages. Okay, menstrual stage, proliferative stage, a part of pre-ovulatory stage. ठीक है? Then secretory stage and ischemic stages, they are part of post-ovulatory stage. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं pre-ovulatory, post-ovulatory? इसलिए बोल रहा हूं कि ovarian cycle and the uterine cycle also known as menstrual cycle, they go parallel. समझ गए? तो इसमें जो फॉलिकुलर फेज है जो अपन ने बताई है उसके अंदर ओवरियन साइकिल, उस समय क्या हो रहा था? मेंस्ट्रुअल एंड प्रोलिफरेटिव स्टेज. फिर उसमें भी ओवुलेशन था. देन उसके बाद पोस्ट ओवुलेटरी में क्या आएगा? सिक्रेटरी एंड इस्टिमिक. जो अपनी ल्यूटियल फेज थी जिसमें कार्पस ल्यूटियम बनता है, दैट फेज पैरेलल टू दी सिक्रेटरी एंड इस्टिमिक स्टेज. ठीक है? इसीलिए आप जब फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो एक डायग्राम आएगा जो मैं भी दिखाऊंगा आपको. आई विल शो दैट. ठीक है? उसमें आपको नीचे यूट्राइन साइकिल दिखाएंगे, बीच में आपको दिस ओवेरियन साइकिल एंड ऊपर आपके हॉर्मोन्स. सबने देख रखा है. ओके, अब इसमें क्या हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? द सीक्वेंशियल चेंजेस इन एंडोमेट्रियम अकाउंट फॉर स्लफिंग ऑफ अपर 2 layers. ऑल नो अपर 2 layers मीन्स कॉम्पैक्टम एंड स्पॉन्जियोसम. और क्या साथ में होता है? दी सेलुलर डेब्रीज, नेक्रोस ग्लैंड्स, जो इसके अंदर ग्लैंड्स थी, एंड ब्लड वेसल्स. इसके साथ में क्या होगा? जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम था वो भी नेक्रोस होके इसके थ्रू इट विल एग्जिट. सो व्हाट इज द वॉल्यूम? 50 to 60 ml. ड्यूरेशन विल बी नॉर्मली 3 to 4 days. एंड व्हाई इट इज, इसमें क्लॉटिंग क्यों नहीं होती मेंस्ट्रुअल ब्लड में? बिकॉज इट हैज दी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. ओके, देन प्रोलिफरेटिव स्टेज में अपन सीधा इसको सबको हटा के यहीं आ जाते हैं. ठीक है? इसी में समझ में आ जाएगा, वो सारी वही लिखा हुआ पूरा. यहां पे क्या हो रहा है ओवरियन साइकिल में? फर्स्ट फॉलिकुलर फेज, द प्राइमोडियल फॉलिकल, इट विल बिकम प्राइमरी फॉलिकल, देन इट विल बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है? ये कौन सी फेज है? फॉलिकुलर फेज. ये किसके पैरेलल में है? यहां पे प्री ओवुलेटरी फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल. इसमें फर्स्ट 4 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है? देन प्रोलिफरेटिव फेज के मेंस्ट्रुअल फेज एंड 5 to 14 days टिल द 14th day, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज. तो प्री ओवुलेटरी में कौन कौन सा हो गया? मेंस्ट्रुअल एंड प्रोलिफरेटरी फेज. इसी के अंदर क्या है? यूट्राइन में क्या है? ओवरी में क्या है? फॉलिकुलर फेज, जिसमें आपका ग्राफियन फॉलिकल तक जा रहा है, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल. देन यहां पे आ गया 14 days पे क्या हुआ? यहां पे ओवुलेशन हो गया. ठीक है? देन इसके बाद में कौन सी फेज बन गई? कार्पस ल्यूटियम वाली ल्यूटियल फेज. इट विल बिकम ल्यूटियल फेज. एंड ल्यूटियल फेज इट इज पैरेलल टू दी सिक्रेटरी फेज एंड प्रीमेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज 1 or 2 days. ठीक है? अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है यहां पे? वो लास्ट डायग्राम. यहां पे क्या हुआ? सेड ऑफ हो गया ऑलरेडी, स्लफ ऑफ हो गया 2 layers का. अगेन यहां पे क्या होगा? ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में. ईस्ट्रोजन कहां से आ रहा है? ग्रेनुलोजा सेल्स हैं जो फॉलिकल्स की जो ग्रेनुलोजा सेल्स हैं वो रिलीज कर रहा है ईस्ट्रोजन. और यहां पे क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम वापस से रीजनरेट हो रही है. एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रही है, ब्लड वेसल रीजनरेट हो रही है, ग्लैंड्स रीजनरेट हो रही हैं. बट दे आर, यहां पे क्या है? यहां पे दे आर स्ट्रेट. बट इन सिक्रेटरी फेज these blood vessels they become
more coiled, more spiral, glands also they become more spiral. और क्या हो जाता है यहाँ पे सिक्रेटरी फेज में, इसके अंदर वाटर का भी ये इडेमस हो जाती है, ठीक है. देन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये इसका लेवल डाउन जाता है, तो क्या होगा, सडनली एक इस्चिमिक स्टेज आएगी. अब उस समय क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है. किसमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है? स्पाइरल आर्टरीज में. अब स्पाइरल आर्टरीज में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है एंड कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज होते हैं. उससे क्या होगा, दोनों जगह पे है प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज. ओवरी में भी है, वहां भी कुछ स्मूथ सेल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ओवरी को जब ओवुलेशन होता है. सेम थिंग यहां भी हो रही है. यहां पे क्या हो रहा है, जैसे इस्चिमिया होगा, हार्मोनल लेवल डाउन जाएगा, तो क्या वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा. वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो देयर आर सम स्मॉल स्पॉट्स ऑफ नेक्रोसिस बनेंगे, ठीक है. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे तो क्या होगा, यूट्रस के मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है. तो उसके बाद में क्या होगा, सो दिस एंडोमेट्रियम इट विल बी स्लफ ऑफ. ओके, देन सी दिस डायग्राम. ये क्या है, हाइपोथैलेमस. यहां से क्या रिलीज हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स. उसके इन्फ्लुएंस में क्या रिलीज होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स. वो किसको इफेक्ट कर रहा है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन को, ठीक है, यहां पे. ओके, बट बिफोर द ओवुलेशन, 30 आवर्स बिफोर द ओवुलेशन, देयर विल बी सडन सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच सर्ज. और इस एलएच सर्ज पे क्या होगा, आपका ओवुलेशन होगा, ठीक है. एंड उसके बाद में क्या होगा, आपकी ल्यूटियल फेज आ जाएगी. यहां पे क्या हो रहा है, कौन से हार्मोन्स, ओवरी में कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स रिलीज कर रही है एस्ट्रोजन, एंड कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन. तो यहां इनिशियली एस्ट्रोजन हाई रहता है, इट विल गो हाई बिफोर द ओवुलेशन अगेन, ठीक है. देन इट विल गो डाउन. प्रोजेस्टेरोन कब हाई होगा, इन ल्यूटियल फेज. ओके, यूट्राइन साइकिल में क्या हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन यहां पे प्रोलिफरेटरी फेज आ रही है. एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, आपके वापस से रीजनरेट कर रहा है एंडोमेट्रियम को, ठीक है, यहां पे. देन अगेन 14 डे पे क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा. फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा यहां पे, एंड प्रोजेस्टेरोन इस एरिया में पीक रहेगा. जब क्या होगा, सिक्रेटरी फेज होगा, जिसमें आपका एंडोमेट्रियम में क्या होगा, ग्लैंड्स विल बी मोर टॉर्चुअस, ठीक है, स्पाइरल आर्टरी विल बी मोर कॉइल्ड, ठीक है. लेकिन जैसे ही ये कार्पस ल्यूटियम से कार्पस एल्बिकेंस बनेगा, तो क्या होगा, हार्मोनल लेवल विल गो डाउन. उसके बाद में क्या होगा, सडन इस्चिमिया होगा. इस्चिमिया कैसे होगा, जैसे हार्मोनल लेवल डाउन जाएगा तो जो ब्लड वेसल थी उनमें क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मींस ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी. एंड ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी तो क्या होगा, वहां नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा. एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑल्सो, एंड दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे हेल्प इन दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है. तो उसके कारण क्या होगा, द एंट्रोमेट्रियम में जो नेक्रोसिस के कुछ स्पोर्स बने थे, दे विल स्लफ ऑफ द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्पोंजियोसम, इट विल स्लफ ऑफ विथ द अनफर्टिलाइज्ड और डिजेनरेटेड ओवम, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्राइन ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके.